اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں وہ اس تجارت کے پورا فائدہ کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دینے چاہتا ہے اور انشاءاللہ کچھ زیادہ ہی بدلہ دیں گے۔ وہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ محترم بھائیوں، جو ہمارے مہمان کی جو ایم سی آنے والی ہے اس کے امیدوار ہیں صدر کے لیے علیم شاہ صاحب اور جناب سیکرٹری جنرل اظہار علی شاہ صاحب اور جناب نائب صدر ابھی نعت جناب پڑھی، کیا بات ہے جناب، ماشاءاللہ امتیاز جوہری صاحب اور خزانہ کے مالک زیدی صاحب اور باقی سارے میرے بھائی جو ممبران ہیں اور ملک عمران صاحب ماشاءاللہ اور بیگ صاحب جو ہے ہمارے خصوصی مہمان ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست مہمان باہر سے آئے یا ہمارے محلے کے ملک شفقت صاحب کے لیے تالیاں جی ماشاءاللہ۔ آؤ جی ویلکم۔ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری ہے نا اصلاحی گروپ ہے، ایم سی بعد کی بات ہے، اصلاحی گروپ اللہ کے فضل سے بڑا جذبہ رکھتا ہے کام کرنے کا۔ جو بھی لوگ آئے تیرے جو بھی آئے الحمدللہ ان پر ہمارے بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اللہ کے فضل سے بڑا جذبہ کا کام کرنے کا۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرے دور میں جب میں اس ایم سی کا حصہ تھا تو ہمارے پریزیڈنٹ تھے گھومر صاحب اور سیکرٹری دو تھے، پہلے اکرم صاحب تھے، پھر پروفیسر نصیر صاحب تھے۔ تو ہماری وہ جھگڑا بھی کاموں کے اوپر ہی ہوتا تھا۔ خدا نہ خواستہ میں نے اپنی ذات کے لیے کام نہیں تو کہا تھا کسی کو، مطلب آپ کے محلے میں جو کام تھا اس کے لیے میری لڑائی ہوتی تھی اور لڑائی اللہ کے فضل سے خوب ہوتی، تھوڑی بھی نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرچے تک گل چلی گئی تھی۔ اچھا بہر کیا اللہ کا فضل ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرے اور آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ہمارا ٹیوبویل ہے نا جی، اس کا جو پائپ پانی کا مین تھا وہ روز ہی لیکیج وہاں چلتی تھی، لوگوں کے ریم ٹوٹ جاتے تھے۔ الحمدللہ 4-5 لاکھ روپیہ یہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران صاحب بیٹھے میرے ساتھی تھے اس وقت، یہ خود جو مولانا صاحب ہیں یہ تو پوری نگرانی کرتے تھے اس میں۔ بڑی بہترین جناب وہ پلاسٹک پائپ اور اس کے جو جوڑ تھے نا وہ جناب ہم نے الیکٹرانک لگوائے تھے، وہ آج تک 6-7 سال ہو گئے ہیں۔ کوئی شکایت کو بتاؤ کہ محلے والے سارے بیٹھے ہیں، کبھی لیکیج ہوئی ہو جی۔ اس کے بعد جناب ہمارا پارک جو تھا وہ وہاں ایسے شکل تھی جیسے قبرستان ہوتا ہے، کہیں اسی جگہ کوئی نیوی مٹی یہ وہ، اللہ کے فضل سے وہی بھی اتنے پیسے لگا کے ہمارے دلچسپی دوستوں نے لی تو وہ بھی ہم نے بہترین بنایا۔ آج بھی پارک آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جی۔ اور سب سے بہترین جو کام کیا نا ہماری اس وقت وہ جو بجلی کا بل ہے وہ A1 اور وہ مسجد توحید کا بل تو سوسائٹی دیتی تھی، ہماری مسجد کا بل نہیں دیتی تھی، ہم بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے۔ وہ جناب میری ایم سی نے پورا زور لگا کر اللہ کے فضل سے سب دوستوں نے ہاں میں ہاں ملائی تو جناب وہ آج بل جو ہے بجلی کا جتنا بھی آتا ہے سوسائٹی دے رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تنخواہ جو تھی مولویوں کی، 2 ہمارے ایک امام ہے ایک مؤذن ہے، ان کی تنخواہ بھی سوسائٹی دے رہی ہے ہاں جی۔ اور آج جو آپ دیکھیں 100% جو سڑک آپ کی بنی ہے یہ آصف صاحب کے دور میں، یہ بھی اس ایم سی کا کارنامہ ہے۔ یہ جو بیٹھے کوئی شاید A1 میں نہ بنی ہو، B3 میں نہ بنی ہو، لیکن اس ملک میں پوری کی پوری سڑکیں بن چکی ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ جو آپ محلے والے سارے دوست بیٹھے ہیں اس پر غور کریں کہ یہ آپ کے لیے کتنی خدمت کرتے ہیں۔ میں بھی جاتا ہوں کوئی کام کہوں ان کو، میرا خیال ہے وہ نہیں دیکھتے ممبر ہے یا نہیں ہے، کون آیا، دیکھو جی کام آیا کام کر دو یار، کوئی بھی کام ہے۔ جی میرا یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، ایک تو میں اپنے ذمہ داروں کو کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ جیتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ آپ کے سامنے میرا پورا محلہ آیا ہوا ہے، ہم نے رات ڈور ٹو ڈور کوئی گھر نہیں چھوڑا اور کوئی بندہ رہ نہیں ہے۔ ادھر ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی ساری جن کے اصل میں ہماری کمزوری ہے کہ ووٹ ان کے ہماری بہنوں کے، تو یہ نا وہ بھی اس لیے انتظام کیا آصف نے اور ملک صاحب نے کہ ادھر چناؤ کیا ہے۔ اچھا ممبر کی بات ہے کہ آصف ایک ممبر اگر گاؤں چلا جائے تو پیچھے کتنے ممبر ہیں، 1
2 डिप्टी साहब और जनाब ये हमारे दोस्त भट्टी साहब भी वो काम हमारे अगर जमादार किसी वक्त नहीं आते तो हम A1 में रिक्वेस्ट करते हैं, वो 2 भेज देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है ना जी, हमारी बेहतरीन सिक्योरिटी है यहाँ, बेहतरीन हमारे जनाब लाइट का सिस्टम है, कभी कुछ हो जाता है ऊंच नीचे लेकिन हम मुतमईन अल्लाह के फजल से हमारी बेहतरीन MC है। अब मैं गुजारिश करूंगा सब दोस्तों से, खास कर जो मेंबर तशरीफ लाए हुए हैं उधर हमारी बहनें हैं कि हमारे ग्रुप को वोट दें, कामयाब करें, इंशाल्लाह कोई काम पीछे नहीं रहेगा इंशाल्लाह। बाकी आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया जी, वेलकम जी। नासिर साहब बैठे हो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब ने बड़ी भट्टी साहब ने बड़ी जोश तकरीर थी, अभी तो थोड़ा रखा था तो हमारे जितने जो इंशाल्लाह आने वाले MC के मेम्बरान हैं वो अभी मैं मियां साहब को बुलाता हूँ, उसके बाद फिर बारी साहब अपना तारीफ कराएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से इंशाल्लाह ताला हमारा पैनल बहुत अच्छा है, आंगन में लोग हैं और इंशाल्लाह हमारा जो C ब्लॉक है दरअसल ये हम एक यूनिट है, आप इसको समझेंगे हम लोग ऐसे हैं जैसे एक घर वाली बात है, बड़ा अल्लाह का बड़ा करम है ये हम पे कि हम ये जितने नहीं बात नौनी का थोड़ा देखा घर मौजूद रहा तो मैं नारा लुआऊंगा इस्लाही ग्रुप जिंदाबाद, प्रेसिडेंट का उम्मीदवार रीम शाह जिंदाबाद, और सारे जैदी साहब और जनाब इम्तियाज साहब सारे दोस्त जिंदाबाद। हमारे इस्लाही ग्रुप के जनाब हमीद साहब अल्लाह ताला उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है लेकिन उनकी दुआएं हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नसीहत दे हम जरूर इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे। अब मैं नासिर जरा तमाम अस्सलाम वालेकुम। तमाम जो MC के उम्मीदवारान हैं उनकी मेहरबानी वो तशरीफ ले आए। असल में इसमें मकसद ये था कि हम C ब्लॉक वाले अल्हम्दुलिल्लाह 1 यूनिट है। अगर हमें शाह साहब ने, सदर साहब और सब ने 97% जिसमें बाद लोगों का इतराज भी था कि 97% सड़कें दी तो हम 97% वोट भी लेके हमारी उधर बहनें बैठी हैं, हम पूरा यूनिट जो है C ब्लॉक को 1 बातें करने को भट्टू साहब ने बहुत बताया आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में कोई इख्तिलाफात नहीं। हाँ मुझे फख्र है थोड़ी सी, अगर सारे भाई की कुछ हमारे यहाँ कोई नए वोटर्स भी आए हैं उनकी इत्तला के लिए है कि इस्लाही आज से 15 साल पहले जिसकी बुनियाद मलिक अशरफ साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करना है, मैं यहाँ नहीं था तो मेरा नाम उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि इसको इलेक्शन लड़ना है क्योंकि हमारे यहाँ C ब्लॉक में लड़ाई झगड़ा ये वो कोई डेवलपमेंट नहीं। एक हमारे मोअज़्ज़ज़ साथी जो इस वक्त भी खड़े हैं उनके लिए बैन लग गया आफ्टर 6 मंथ। तो मैं ये गलत बयानी नहीं करूँगा, ऑन रिकॉर्ड बात करूँगा, उन पे बैन लग गया कि तुमने सोसाइटी ऑफिस में एंटर नहीं हो। ठीक है, उनको क्यों बद अखलाकी बदजुबानी और उसकी वजह से और गारंटी के साथ लोग जानते हैं। हमारा C ब्लॉक बिल्कुल मलिक अशरफ साहब ने हुक्म दिया, मैं याद है कि मैं वापस आया तो भट्टू साहब मेरे घर घर में पोस्टर दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला जिस हमें पहली आज 15 साल पहले हमें अल्लाह ताला ने फतह दी, सबसे पहले हमने ये काम किया कि मस्जिद वो 1 मैन शो थी। नमाज पढ़ रहे होते, लाइटें पंखे बंद, ठीक है जी। हमने आके हर गली में से एक मेंबर बनाया, खजानची बनाया, सदर बनाया और खजानची जो हमारे थे वो बड़े जबरदस्त किस्म के हैं जो कि पिस्टल पॉइंट से हमारे से पैसे भी ले लेते थे। हमारी मस्जिद की हालात ये थे कि उसमें 1 कूलर था, 2 सफ़े। अल्हम्दुलिल्लाह
भट्टू साहब और ये सदर है, ये हमारे मस्जिद के, और बाकी भट्टी साहब है, नहीं वो सारी मस्जिद कमेटी के जो यूनिट वाले ने जो मेहनत की, एक वो हमारे साबर साहब, इस वक्त हमारी छोटी सी मस्जिद में 12 टन एसी लगा, और उसकी जमीन से लेके अगर छत तक देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह 7 स्टार टाइल जो लगी है, यानी कि और किसी से हमें चंदा नहीं, हमारे भट्टू साहब के गन पॉइंट पे अपने लोगों से ही काम कर रहे हैं। जिस वक्त हमने मस्जिद में एंट्री डाली है, टोटल इसका बजट जो हमें ये एग्रेसिव वाले खड़े हैं झूठ पे मबनी 2400 रुपया, और एक पाइप इसका असासा था। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 5-5.5 लाख रुपए से ऊपर बजट पड़ा है, हमने किसी से लिया नहीं है, अपने मदद आपके तहत छोटा सा ब्लॉक। यहाँ इस्लाही ग्रुप के आने से पहले किसी बुजुर्ग की इज्जत महफूज नहीं थी, गाली गलौज लड़ाई झगड़ा। बल्कि हमारे मस्जिद मेरे बड़े प्यारे भाई सुबैर साहब मुझे कहने लगे कि यार आज मेरे बात जिस वक्त मैं पहली दफा हूँ, कहते हैं कि यार आज हम घर बात कर रहे थे, तो वो मुंह पे बैठे हैं, कहते हैं घर बात कर रहे थे कि जिस वक्त का ये आसिफ आया उस मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। हमने क्योंकि सारों को यूनिट एक कर दिया, सिर्फ एक आदमी के सिर्फ एक आदमी के अलावा जो अभी भी हमारे से अलग है। बाकी बातें बहुत वो अच्छा नहीं लगता, किसी से पर्दा उठाए, कहीं टायरें चोरी हुई, कोई ट्यूबवेल के झूठ बोले गए, वो हम अच्छा नहीं लगता, हम बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ अपने ये जो हमारे यहाँ नए मुअज़्ज़िज़ मेंबरान बैठे हैं इनको गोशगुजार ये करना चाह रहा हूँ, और इसके बाद थोड़ी सी रिक्वेस्ट मैं नई MC से भी करूँगा कि जो पिछली हकायक है वो मैंने बताए, नए जो हमारे 2-3, क्योंकि देखें हम 1 यूनिट है, हमने एक साथ काम करना है और काम हमने आपसे लेना है। 2-3 चीजें जो ऐसी है कि अल्लाह ताला हमें सबको कामयाबी दे। उसके बाद मैंने शाह साहब से रिक्वेस्ट की थी कि एक तो हमारे जो मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर राशन नजीर से रिक्वेस्ट करेंगे, एक साइड से ये और वो एक पोल है, उधर हमारी कोई नेम प्लेट होनी चाहिए कि हमें पता चले कि यार C ब्लॉक फेज 3 गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये है। अभी हम बताते हैं कि सिंध बैंक के पास से आ गए, एक ये है। दूसरे 2-3 छोटे मामला है वो मैं शाह साहब से खुद करवा लूंगा, जिस तरह सड़कें करवाई, सड़कों का पूछा नहीं है, करवा ली। तो बाकी सब मेहमानों को यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि हमारा C ब्लॉक का कोई मेंबर अगर ऑफिस में किसी काम की वजह से जाए, उसके लिए C ब्लॉक का नाम ही बहुत है। आगे ये ना पूछे कि यार फलां को ले या फलां को ले, वो कहे कि मैं C ब्लॉक से आया हूँ, हर बंदा उससे वेलकम करता। तो मैं सब सदर साहब से, नायब सदर साहब से, सेक्रेटरी साहब से, वो हमारे खजानची बैठे हैं जो हमारे पैसे नहीं देते होते, तो उनसे ही रिक्वेस्ट करूँगा, बाकी सारे मेंबरान से कि C ब्लॉक को या कोई मेंबर वहाँ से मायूस बाहर नहीं आना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ख्याल रखेगा। और बाकी मैं जनाब सदर साहब की थोड़ा सा अपना जी वो करते हैं ना, ये यकीन करें हम हर बड़ा काम करने के लिए 10,000 दफा सोचते हैं कि यार ये इतना पैसा चले जाएगा तो पैसा वापस कहाँ से आएगा। ये इस मसाजिद से सोसाइटी चलती नहीं है। ये जो थोड़ा सा पानी का बिल बढ़ाया, ये मजबूरी बन गई थी कि 20 लाख रुपया हर माह हम फालतू में लॉस पे जा रहे थे। तो उसको रोकने के लिए हमने बड़ी कोशिश की है कि चले किसी तरह और बेहतर हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने ट्यूबवेल हैं इनको सोलर पे ट्रांसफर करते, ताकि हमें कम से कम बिजली का बिल देना पड़े, जो रोज आए रोज बढ़ता है। और मसीबत पंप इसमें लगाने लगे हैं हर एक करके, और इनको सबको सोलर पे कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारी मैक्सिमम बचत हो सके। और भी बहुत सारी स्कीमें हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि हमसे सोसाइटी को फ़ायदा मिले, कोई नुकसान ना हो, कोई ऐसे बंदे ना आए जो सोसाइटी के जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी खाने के लालच में आके इसको और ही बर्बाद कर दे।
हमने LDA के साथ भी केस लड़ा हुआ है, 2 केस हमारे पास तकरीबन मचूर होने वाले हैं। एक हमारी 37 कनाल ज़मीन है जो कि ली थी एक नए फेज के लिए, उसके बाद वो नहीं बन सका, क्या हुआ क्यों हुआ खुदा बेहतर जानता है, लेकिन हमने वो ओम से LDA ने छीन ली। अब LDA के पास हमारा पैसा पड़ा हुआ है, वो ये कहते हैं कि आप थोड़े पैसे ले लें, हम कहते नहीं, हमें किसी मार्केट के करीब पैसे दे सके, इतनी देर से आपने हमारा कब्जा किया और पैसे तो दे देंगे इंशाल्लाह। वो भी मुझे लगता है अल्लाह की रहमत से हमारे पास शफीक साहब हैं, इम्तियाज साहब हैं, ये इन चीज़ों में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है हम 1-2 माह के अंदर इसको सॉल्व कर देंगे। इसी तरह हमारे लोगों ने टावर लगाए हुए हैं, किसी ने नहीं कभी पूछा ना जादू नहीं कि मैंने टावर लगाना है, मेरे साथ वाले घर वालों को तकलीफ होगी, ठोक दिए टावर पड़ा, तो वहाँ से पैसे मिलते हैं। अब हमने उन पे केस कर दी, हमें 20 लाख भी मिला है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि सबको काबू करेंगे तो और भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, और वो भी इम्तियाज साहब, शफीक साहब, शाह साहब की काफ़ी होगा। और इसी तरह के और काफ़ी छोटे मामला हैं, उनके लिए बड़ी मेहनत चाहिए, तगोदो चाहिए और कुछ बहादुरी भी चाहिए। ये सारी बातों से काम नहीं होता। 30 साल में जिन लोगों ने अपनी चीज़ें नहीं वापस ले सके 35 साल में, और हमने वो ले ली, और ये मैं समझता हूँ CMC की बड़ी हिम्मत है कि उन लोगों से ली है जो लॉयर भी थे, उनके अपने वसाइल भी थे, यही कहा कि भाई हमारे पैसे हमें दे दें, आप पैसे अपने ले जाएं, ताकि सोसाइटी भी चलती रहे, आप भी अपने घर जाए। ये केसों में क्या पड़ा, 30 साल के इस लड़के क्या बना, आपके वालिदैन चले गए, आप भी कल को चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, लेकिन हम लेने नहीं देंगे आपको, क्योंकि ये सोसाइटी के मामले हैं। और अल्लाह के फजल से उन्होंने समझा, सोचा और सोसाइटी के पास मकबूल रकम आ गई, जिससे ये सड़कें वगैरह बनी। और दुआ करें कि MC कामयाब हो, अल्लाह में पता दे। हमारे पास कुछ प्लान जरूर है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाली नस्लें जो हैं वो यहाँ पे सुकून से रह सकें, मुसीबतों से बच के रह सकें, और हमारा ना कोई एजेंडा है, ना हमें कोई इसमें लालच है। यही है कि चले कम से कम ऐसा तो हो, हमारी 25-30 साल तो कम से कम आराम से लोग रहने वाले अपना गुजारा करें। आए दिन कोई ना कोई गड़बड़ हुई होती है, हम उसको बचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ देंगे, वोट भी करेंगे, वोट भी देंगे। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर पर जुमे वाले थे, आप सब लोग आइए। हाँ जी, कल लैंड डिनर है रात को 8 बजे लेडीज़ पार्क में एवन में। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप सब लोग आएंगे, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, अच्छी तकरीरें मिलेगी, आपको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अलीम शाह साहब, हमारे आगे वाले सदर, जो 2-3 चीज़ें रह गई हैं उसमें एक तो ये है मतलब यहाँ पे जो आपने देखा होगा, हमने एक ट्यूबवेल ऐड, ये आपको पता है कि आपका ट्यूबवेल का हमारा जो पानी का सिस्टम है दैट इज कनेक्टेड है यहाँ से फेज C ब्लॉक, B ब्लॉक और फेज 2, ये चारों ट्यूबवेल जो है आपस में कनेक्टेड है, इकट्ठे चलते हैं तो प्रेशर बनता है। इसमें हमने ये किया है कि वहाँ उधर ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ भी पानी का मसला होगा, तो हमने फेज 3 में एक नया ट्यूबवेल ऐड किया है, जिसकी वजह से आपको सब महसूस हुआ होगा कि अब यहाँ पे पानी जो है उस प्रेशर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो वो हमने वहाँ पे किया, वहाँ पे भी कुछ एरियाज ऐसा था जहाँ हमारे जो फेज 3 में आखिर की गलियाँ जो थी वहाँ पे पानी मुश्किल से पहुँचता था, वो उनको ट्यूबवेल ऐड करने से उसमें ये हुआ कि यही पानी वहाँ जाता था। प्रेशर काफ़ी समझते हैं सारे समझदार हो गया कि जी जब एक और चीज़ ऐड हो गई है तो उससे प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने से मेरा ख्याल है कि हमारे एरिया में कोई टैंकी तक पानी मोटर से नहीं वैसे पहुँच रहा होगा, मैनुअली पहुँच रहा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना कर रहा हूँ, जुलाई से आपको पता है वापदा ने रेट बढ़ा दिया है, जुलाई से रेट जो है ऑलमोस्ट मतलब अगर हम NDA के लिए तो NDA जो 2200 रुपये पर कनाल लेता था, आज वो 6400 रुपये पर कनाल ले रहा है पानी का बिल। सिर्फ पानी के बिल की बात हो रही है।
हमारा आज भी 2800 रुपये है, हमारा आज भी 2800 रुपये है। जब हमने 3 साल पहले यहाँ पे आके बैठे थे तो हमारा बिल आता था 45 लाख से 45 लाख तक। आज हम 71 लाख रुपए बिल पे करते हैं पर मंथ, ये पे करते हैं। अभी ये हमने कोशिश की है कि आपके पास ये ट्रांसफर ना करें, मेंबर्स पे ना डालें, क्योंकि बाहर की महंगाई से हर बंदा जो है तंग आया हुआ है, तो सब तंग है। तो इसमें हमने ये किया था, आपको शायद इसमें महसूस भी होगा, तो हमने टाइम रिड्यूस किया। टाइम रिड्यूस करने से ये हुआ है एक तो पीक आवर्स का जो शाम का काम ने खत्म किया, वो पीक आवर जो है 6:30 से लेकर 11 बजे तक है, और उस पर 40% रेट बढ़ जाता है। तो हमारा ये सारा कमर्शियल वो है, टूल्स हैं हमारे कमर्शियल से उस पर चलते हैं, इसमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इसीलिए अब आपको शायद तंगी भी थोड़ी हुई होगी कि हम 6:30 बजे बंद कर देते हैं, 6 बजे पीक आवर शुरू होते हैं, 6:30 बंद कर देते हैं, दिन में इसी तरह चला रहे हैं। और हमने इसका टाइम रिड्यूस करके अभी भी बिल को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है, और उसमें हम कामयाब हैं। अभी हम हमारा नया प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं ट्यूबवेल्स के रेफर से, इस वक्त जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं इनमें 80 किलोवाट की हॉर्स पावर्स की मोटर्स लगी हैं, 80 हॉर्स पावर की मोटर्स लगी हैं, जिनका बिल जाहिर यही आएगा, कंजम्पशन उसका जो आना है वो रेट यही होगा।